PDP صدر محبوبہ مفتی والٹنگ ناٹ کۄلگامیُک دورٕ متٲثرہ عیالن سۭتۍ کوٚرُکھ تعزیت انتظامیہس امداد کرنٕچ منٛگ ملکس منٛز سڑک حٲدثن دوران لچھوادٕ لوگ جاں باغ مرکزی سرکار طرفہٕ روٹ لاگنس حوالہٕ تُلنہٕ آمٕتۍ کیا قدم ٹرانسپورٹرن ٹریفک قونوٗنن پٮ۪ٹھ عمل کرنٕچ سٮ۪ٹھاہ ضروٗرت نتن گڈکری SSP شوپیان گاندربل تو ورمل سنز لوکن اپیل سوشل میڈیا استعمال کرنس پٮ۪ٹھ صحیح استعمال کرنس پٮ۪ٹھ لوکن زور السلام علیکم ناظرین رٲژ سٕنٛز 9 بجے تو کٲشُر خبر نامہ ہیتھ چھُس بہٕ ساحل امین تُہنٛدِس خدمتس منٛز حٲضِر تہٕ پیش چھُ خبرن ہُنٛد تفصیل ہماچل پردیشس مز یہ حالی أکِس سڑک حٲدثس دوران والٹنگو ناڈ کۄلگامِکۍ 6 مزور جاں باغ سپٕدۍ تتہِ چھُ آز PDP صدر محبوبہ مفتی علاقُک دورٕ کوٚرمُت یتھ دوران تِمن ہمراہ پارٹی ہٕنٛدۍ دوٚیِم لیڈر تہِ موجوٗد ٲسۍ دورس دوران ییٚتہِ تِمو لوٲقیٖنن سۭتۍ تعزیت تہٕ یکجہتی ہُنٛد اظہار کوٚر تتہِ چھِ تِمو LG منوج سنہاہس منٛگ کٔرمٕژ زِ مُتٲثرٕ عیالن گژھِ بھرپوٗر امداد دِنہٕ یُن یُتھ زن نہٕ تِمن دۄہ گُزارُن مُشکِل سپدِ ییٚلہِ زن تِمو ووٚن زِ تِم تُلن یہِ معاملہٕ ہماچل پردیش کِس وزیر اعلیٰ سۭتۍ یُتھ زن ہماچل سرکار طرفہٕ تہِ جاں بحق تہٕ زخمی سپٕدمٕتٮ۪ن شخصن ہٕنٛدِس حقس منٛز ایکس گریشیا ریلیف واگزار کرنہٕ یِیہِ بہت ہی کیا کریں یہ تو دل دکھانے والی بات ہوئی ہے آپ نے دیکھا ہے ایک ایک شخص کی 6 بچیاں ہیں 3 بچے ہیں بوڑھی ماں ہیں اور مزدوری کرنے کے لیے بیچارے گئے تھے اور وہاں ان کی موت ہوگی تو میری کوشش رہے گی ایک تو جو ہماچل پردیش کے جو وہاں کے چیف منسٹر ہیں کوشش کریں گے وہاں ان سے بھی بات کریں اور لیفٹیننٹ گورنر سے بھی میری گزارش ہے کہ یہ بہت ہی غریب لوگ ہیں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے ان کے پاس رہنے کو جگہ بھی نہیں ہے کئی لوگوں کے پاس ان کی پوری طرح سے مدد کی جائے تاکہ یہ بیچارے جو عورتیں پیچھے رہ گئی ہیں بچے لے کے یہ اپنی زندگی جو ہے کم سے کم آگے گزار سکے وہ جو چلے گئے اس دنیا سے وہ تو واپس نہیں آ سکتے مگر جو پیچھے ان کا اہل و عیال ہے وہ کم سے کم جینے کے لائق ہو جائے تو میری کوشش رہے گی اور گزارش رہے گی لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے بھی اور جو زخمی ہیں وہاں ابھی شملہ میں ہیں تو میں کوشش کروں گی وہاں کی سرکار سے بات کر کے کہ ان کی بھی دیکھ بھال کی جائے اور ان کو بھی جو بھی نیشنل کانفرنس پارٹی نائب صدر عمر عبداللہ آز ترالس مز ذرائع ابلاغ ست کت کران وونمت زِ دفعہ 307 کس معاملس مز PDP طرف سپریم کورٹس کن رجوع کرنا آمت تو یدوے وون یہ جماعت سپریم کورٹس کن رجوع کر سہ آسہِ امہِ پارٹی ہٕنٛز ذٲتی مجبوری کی مجبوری ہوگی کورٹ میں جانا کیونکہ سپریم کورٹ میں وہ پہلے آئے نہیں جب ہم لوگوں نے 5 اگست 2019 کے خلاف کورٹ میں کیس کیا تو PDP اس وقت خاموش رہی ہمیں فی الحال تو کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا کیس پہلے ہی کورٹ کے سامنے ہے اب اس وقت کی خاموشی کی وجہ سے اگر PDP کو اب کورٹ میں جانا ضروری لگ رہا ہے تو بے شک جائیں وہ ان کو نہ کوئی روکے گا نہ کوئی ہم اس کے خلاف کچھ کہیں گے الگ فنکشنز تو کرتے رہیں گے کیوں نہیں کریں گے ہمارے الگ الگ موقف ہمارے الگ الگ مطلب خیالات لیکن جہاں تک بڑے مقصد کی بات ہے جہاں تک 5 اگست کی بات ہے اور ہمارے ساتھ جو دھوکہ ہوا اس کے لیے ہم مل بیٹھ کے بات کرتے ہیں ہم مل بیٹھ کے اس کا علاج ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں پارلیمنٹ سیشنس دوران آز لوک سبھا مز مرکزی وزیر ٹرانسپورٹ نتن گڈکرین ایوانس سڑک حٲدثن ہند اعداد شمار پیش کران وونمت زِ وزارت طرف سڑک حٲدثن پہ روٹ لاگنس حوالہ کیا قدم تلنہ آمت تاہم مزید کی قدم تلن ضرورت یُتھ زن ات پہ پور پٲٹھۍ روٹ لاگنہٕ ییہِ With the service road, there is a problem because already we are facing very crucial problem related with the road accident, which already you elaborated. Presently, unfortunately, in 2021, the number of road accident is 4,12,432, and in 2022 it is 4,61,312 accidents,
that is 12% rise. Number of deaths, actually 2021 it was 1,53,972 and presently it comes to 1,68,491. That it is a loss of GDP of 3.14%, and the most unfortunate thing is 67% deaths belong to 18 to 45 years. The young people now, they are facing this problem, and I am very sorry. Unfortunately, it is not a good success story of my department that we are trying our level best from last 9 years, but we are not in position to reduce the accidents and death, where we say a problem of human behavior. They have to obey the law, lane discipline, driving license, don't talk on the mobile phone at the time of driving. These are the small things where we... राज्यसभा मज आज मरकजी वजीर सयाह जी कृष्ण रेड्डीन सयाहन हिंद एदाद शुमार पेश करान वोनमुत ज जम्मू कश्मीर मज नवंबर किस रेतस ताम 2 करोड़ खोत ज्यादा सयाह आमत यम सत यह कत साफ सपदन ज मरकजी सरकार कचा सयाहतस पोचर दिनस हवाले संजीद। 11 महीने में 2023 में इस महीने में जब लगभग नवंबर तक 2 करोड़ एक ही जम्मू कश्मीर का ही 2 करोड़ टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट किया है। इतिहास में आजाद के बाद जम्मू कश्मीर के इतिहास में इतने टूरिस्ट कभी नहीं आए हैं। अब आर्टिकल 370 के हटाने के बाद मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर स्टार्ट किया है। अभी उसके कारण 2 करोड़ टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में हैं। भारत सरकार हर विषय पर टूरिज्म बढ़ाने के लिए आधार सबसे भारत का एम्बेसडर दूसरा कोई नहीं, हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है भारत का एम्बेसडर टूरिज्म बढ़ाने के लिए। जो भी देश में जाते हैं विदेश में जाते हैं हर मीटिंग में टूरिज्म के बात करते हुए जरूर लोगों को भारत का टूरिज्म। यपर मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदियन सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2023 हिमायत करान ऐवानस तो मरकजी सरकार मंग करान वोनमुत ज वादी मज ये महकमा सयाहतुक बुनियादी ढांचे तो मैन पावर मजीद मजबूत बनाने जरूरत तत गज टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी यूनिवर्सिटी कायम करने yin युत जन सयाहतस पोचर दिनस मज मजीद आसानी सपदे। समर्थन में जहां खड़ा हूं तो वहां मैं जनाब एक जिक्र करूंगा। इस साल सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1.5 करोड़ सयाह जम्मू कश्मीर आए और आने वाले वर्षों में इनकी तादाद में इजाफा होने की तवक्को है। तो माना जाता है कि अगले साल शायद जैसे सरकार की जो उम्मीदें हैं या जो उन्होंने जो फिगर दिए हैं एक्सपेक्टेशंस है वो है कि 3 करोड़ के करीब सयाह आने वाले जो बरस में या उसके बाद जो आने उस जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे। तो जनाब मेरा ये कहना है कि इस आमद के साथ साथ ही जहां पर जो अकोमोडेशन है, जो होटल जो व्यवस्था है, जो अरेंजमेंट्स है उनमें बढ़ोतरी की एक तवक्को है। वहां साथ साथ ही जो मैन पावर है, जो टूरिज्म इंडस्ट्री को, हॉस्पिटैलिटी को जो मैन पावर की जरूरत होती है, ये 3 करोड़ सयाहों को या 4 करोड़ सयाहों के लिए जो व्यवस्था है, जो इंतजामात है, देखरेख है, मैनेजमेंट है, उसमें भी बढ़ोतरी की तवक्को है कि उस मैन पावर में वो मनीफोल्ड बढ़ जाएगा। हमारे होटल रूम्स हैं उनमें भी मुझे लगता है कि कई 100 गुना इजाफा होगा और साथ साथ ही जो हमारे जो ट्रेंड है, जो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म के साथ वाबस्ता है उनमें भी इजाफा होगा। तो मकसद ये कहने का मेरा है कि आप सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी एक्ट है 2009 इसके तहत जो मरकजी सरकार है वो ये एहतमाम कर दिए कि मुख्तलिफ जो नेगलेक्टेड सेगमेंट्स है वहां पर ये यूनिवर्सिटी कायम करके ताकि वो भी एड्रेस हो, जो उनकी जो तवक्कात हैं या जो ज़रूरियात है वो ज़रूरियात पूरी हो। तो मेरी ये तजवीज़ है कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत एक टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी यूनिवर्सिटी कायम की जाए अनंतनाग में, कश्मीर में, ताकि जो हमारा मैन पावर के जो तकाजे होंगे, जो मैन पावर के जो रिक्वायरमेंट्स होंगे आने वाले सालों में, ताकि वो पूरे इस वक्त तक आज तक हमने कोई डेडिकेट ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई नहीं। और जनाब अनंतनाग में आप पहलगाम भी है, वेरीनाग भी है, डक्सुम भी है, अरबल भी है और सारे जो हेल्थ रिजॉर्ट्स है जहां अब शुरू हुआ। जनाब जनाब ये मालूम है आपको कि अब पिलग्रिमेज टूरिज्म, डेस्टिनेशन टूरिज्म, इवेंट टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, हर एक टूरिज्म की हर एक जो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, डिफरेंट जो इसके सेगमेंट्स है टूरिज्म के, दिन ब दिन डोमेस्टिक टूरिज्म भी बढ़ता जा रहा है, बाहर वाला टूरिज्म बढ़ता जा रहा है, लेकिन मैन पावर की कमी है।
और कश्मीर से अलावा कोई और जगह, ऐसी कोई जगह नहीं है सारे मुल्क में जहां ये यूनिवर्सिटी जो हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी यूनिवर्सिटी हो, जहां इसका एहतमाम किया जाए, इसको एस्टेब्लिश किया जाए, ताकि एक तो ये है कि मैन पावर जो हमारा है इस हॉस्पिटलिटी जो इंडस्ट्री है, इसको जो मैन पावर की जरूरत होगी एक तो वो पूरा हो जाए। ट्रेड जो है, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं करेंगे कि हम उनको वो सहूलियात हों जो टूरिस्ट जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं या कई और जगह जाते हैं, फॉरेन से आते हैं। एक तो हम अर्न करते हैं फॉरेन एक्सचेंज जनाब, और फिर डोमेस्टिक जो एक इसमें एक बढ़ावा मिलता है लोकल जो हमारी इकोनॉमी है उसको, तो उसके लिए हम ये अफोर्ड नहीं करेंगे कि वो नेगलेक्ट हो या किसी तरीके से उसमें कमी हो। तो मेरा ये सुझाव होगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 के तहत एक हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी यूनिवर्सिटी का एहतमाम के इसका एस्टेब्लिश किया जाए, इसके लिए एक प्रपोजल किया जाए ताकि ये अनंतनाग में जनूबी कश्मीर में एस्टेब्लिश हो, और हम ये जो नए आने वाले चैलेंजेस हैं, आने वाले तकाजे, मरकजी सरकार तरफ ये लोकसभा मज रात बिल पास करित कशरन पंडितन नॉमिनेशन जरिए 2 असेंबली सीट दिन आई, तशर पंडितों तरफ अथवाल नाराजगी हूं इजहार करान वन आमुत नॉमिनेशन जरिए तिमन सीट मंजूर बल्कि गशरन पंडितन इंतखाबी अमले मज हिस्सा निनुक मौका फराहम करने। देखिए, इतिहास से सन 1990 से लेकर आज तक जो हम कश्मीरी पंडित जो है अपने देश में दंडित है, हमें ये लगता था कि अब जो है कुछ ना कुछ समाधान हमारा होगा, क्योंकि राजनीति एक बहुत बड़ी खास चीज है। पूरे विश्व में, पूरे भारत में हर एक आदमी को अपना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का जो है ताकत है, लेकिन हम कश्मीरी पंडितों के पास नहीं है। हमारी कई बार जो है सरकारों से गुहार लगी है, कई बार हमने सरकारों से जो है गुजारिशें की है, विनती की है कि हमें जो है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दिया जाए, जैसे बाकी सुविधाओं के लिए है वैसे हम भी चाहते थे। क्योंकि हम लोग कश्मीर में जो माइनॉरिटी में है, हमारी ये डिमांड थी कि हमें 5 असेंबली सीटें और 2 पार्लियामेंट सीटें और 1 जो है राज्यसभा की सीट दिया जाए। लेकिन जिस हिसाब से अभी भारत सरकार ने कल जो है बिल लाई है, उस हिसाब से वो हमें कतई मंजूर नहीं है, क्योंकि हमें नॉमिनेटेड नहीं चाहिए, हमें सिलेक्टेड नहीं चाहिए। हमें 5 कॉन्स्टिट्यूंसी जो आप डिक्लेयर कर लीजिए, जिसको हम जो है मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरी पंडित, जहां पर जो है कल के डेट में कश्मीरी पंडित कोई भी जो है व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है। जिस समय आप ऐसा करोगे कि आप पिक एंड चूज करके आप जो है अपने मर्जी से हमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करोगे, मुझे नहीं लगता है कि वो आदमी जो है कल के डेट में हमारा कोई काम कर सकता है, क्योंकि उसको जो पॉलिटिकल पार्टियां बोलेंगे वो वही करेगा। जब किसी आदमी ने ग्राउंड पर काम किया होगा, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में ग्राउंड पर काम किया होगा, तो वही आदमी जो है कल के डेट में। यपर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्लाहन नॉमिनेशन सीटन हवाले कत करान वोनमुत अम सिद यह कत साफ सपदान भारतीय जनता पार्टी फायदे वातनावन बापत यह कदम तुलना आमुद। हमें बिल से सबसे बड़ा इतराज ये 2 चीज़ों पे है। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने रीऑर्गेनाइजेशन पे अपना फैसला सुनाया ही नहीं है और ये लोग तब्दीली पे तब्दीली ला रहे हैं। उसके साथ साथ जहाँ तक नॉमिनेशन से सीट भरने का काम है, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट को इख्तियार दिया जाना चाहिए। ये जो बिल के तहत इन्होंने एलजी साहब को दिए हैं, इसमें सीधा सीधा ये शक पैदा होता है कि ये बीजेपी की मदद करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी इलेक्शन जीत नहीं सकती तो बैकडोर से ये अपनी सीटों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर इसमें फिलहाल कोई तब्दीली नहीं आती है तो इलेक्शन के बाद जब यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट होगा, इसको दोबारा से देखा जाएगा। हमें बिल से नाजरीन कशर खबरनाम जारी ये तजरती वक्फ।